Hi everybody, I'm Maman Tufail, Assistant Professor from University of Sindh Campus Badin, and presently I'm talking to you from the platform of Paragon Academy Badin, and I welcome you all in this free online English language teaching courses. Today we are just going to talk about in today's structures it will be based for tense. This is the 20th session today, and in our previous sessions we talked about language skills. Then we talked about the methodology, the way we learn any language, and we also covered that what areas are important to become as a language user, because here our concept is English, and basically I'm training you to become English user, a language user at a professional level, at a personal level, even at an academic level. So in our previous class we talked about verb. You know that initially I gave you that this key areas where you need to work in order to improve your language, and initially you were informed about development in your semantics, phonetics and syntax. In a semantics, I suggested you to enhance your working vocabulary. I don't mean that you start cramming Oxford Dictionary, etc., but the most frequently used word and basics vocabulary, you may enhance that vocabulary, and then you also work on its phonetics, because तलफ़्फ़ुज़ जब आप अल्फाज़ों को अदा करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, and the way you pronounce words, it carries impact, and it has a very deep impact on the listener if you are speaking language with its appropriate pronunciation and with a reasonable at least accent. I don't mean that you start imitating English people, but the thing is that at least at the basic level your language to somehow should be free of the influence of your L1, may it be Sindhi, Pashto, whatever, Punjabi. So these L1 are naturally to impact your languages. तो एटलीस्ट आप इतना फोनेटिक्स पे काम करें कि आपका जो तलफ़्फ़ुज़ हो वो प्योर जो है ना अपना आपके L1 के इन्फ्लुएंस से फ्री हो. देन वी टॉक अबाउट सेंटेक्स में हमने कहा कि वी नीड टू फोकस द बेसिक एरियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, और हर तकरीबन आज भी जो 20वां सेशन है हमारे फ्री ऑनलाइन लैंग्वेज टीचिंग कोर्स का, और इस 20 सेशंस के अंदर तकरीबन हमने नाउन को कवर किया है, एडजेक्टिव को, नाउन को, वर्ब को हम कवर कर रहे हैं, और आज वर्ब की ये चौथी क्लास होगी रिगार्डिंग वर्ब. ओके, इंट्रोडक्शन मैंने वर्ब का दिया था, उसके बाद फिर मैंने कंसेक्यूटिव 2 वर्ब के क्लासेस ली थी उसकी डेप्थ जो ना डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए. और आज की जो क्लास है, टुडेज क्लास इज़ स्पेसिफिक हाउ टेंस स्ट्रक्चर्स, बिकॉज वो बड़ी खूबसूरत बात याद आ जाती है. बचपन में हम सबको यही बताया जाता था कि आप सिंपल टेंस सीख लो तो आपको लैंग्वेज आ जाएगी. तो ऐसा नहीं होता है. ओनली टेंस इज़ नॉट अ सफिशिएंट फॉर लैंग्वेज. लैंग्वेज इज़ अ कंप्लीट सिस्टम इन अ पैकेज, एंड वी हैव टू take these basics, at least semantics, syntax and phonetics for to become a common users of language. तो आज की जो क्लास है we will look at the structures of tenses, what type of tenses we have and how do we use them and in which conditions, and what are their appropriate function in this language. That's very appropriate. So today's class is also equally important, and we will first we would define that what tenses are, that what are the different tenses, but here we will not go for that type of a traditional practice that I write a letter, I don't write a letter. This is not our job. Here I would only explain you its concepts and where they are being used in this language. then you will be allowed to practice it in your at your own, and I will elaborate
द फंक्शन ऑफ ईच टेंस, विच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप इस टेंस को किस किस कंडीशंस में यूज़ कर सकते हो. दैट्स वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. So we would switch towards that thing. So let us anybody can confirm me that if you are listening to me properly and my voice and picture is clear to you, we would proceed further. Just confirm me that voice and the picture that's clear to you. Thank you very much, Meg. Thank you, Babu. Babu, thank you very much, sir. Sir, thank you very much. Thank you. So, Sir Babu is also with us. Okay, Sir Babu, thank you very much. Thank you. May God bless you. So, please, now let us move forward. Thank you, Zaid. Thank you very much. Thank you for you. Okay. AR, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Khan Saab, thank you. Thank you very much. That's great. Okay, we are very, very good deal of people. Okay, very good deal of people from Tandobago, from Gularchi, from Nidhu, from Kadiogavar. Oh my God, that's nice. Very beautiful. So thank you. Let us proceed further towards this tense. So now, but before moving towards the tense, okay, let me talk about some basic things about tense and some misconceptions. Basically, तो ये समझिए कि टेंस से मतलब है टेंस मीन्स साइन. और जब भी हम टेंस को पढ़ाते हैं हम वर्ब में पढ़ाते हैं. वर्ब मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि नाउन चीज़ों पे नाम रखता है ताकि उसकी पहचान हो. प्रोनाउन उसके मुतबादिल आता है ताकि आप नाउन को बार बार रिपीट ना करो, क्योंकि रिपीटेशन से लैंग्वेज की वैरायटी ख़राब होती है. अब जब एडजेक्टिव में आ गए तो मैंने पहले बताया था कि नाउन पे नाउन बुनियादी तौर पे वो जैसे समझो कि बहरा है ना, वो अपने बारे में, या गूंगा है. नाउन प्रोनाउन ऐसे समझो गूंगा है, वो अपने बारे में कोई भी वकालत नहीं कर सकता. नाउन की प्रॉपर्टीज़ कौन हमें बताएगा? एडजेक्टिव. उनका जो वकील है उनके बारे में आप कोई भी नाउन रख लें. टीचर है ना, अब टीचर को क्लियर करना ये एडजेक्टिव की जिम्मेदारी है. रिस्पॉन्सिबल टीचर, केयरफुल टीचर, कोऑपरेटिव टीचर, सपोर्टिव टीचर, ऑनेस्ट टीचर, डेडिकेटेड टीचर, पंक्चुअल टीचर, हार्ड वर्किंग टीचर, कमिटेड टीचर, सिंसियर टीचर, एक्सपीरियंस टीचर, ओके, वेल क्वालिफाइड टीचर्स, वेल ड्रेस्ड टीचर्स, वेल कम्युनिकेटिंग, जितने भी वाट एवर वी आर पुटिंग. अब एक नाउन के लिए ये सब के सब जो है ना वो एडजेक्टिव्स हम रखते हैं. इस सेंस के अंदर मैंने अर्ज किया है कि एडजेक्टिव जो है ना वो नाउन का वकील है. ठीक है. प्रोनाउन बुनियादी तौर पे कोई चीज़ नहीं. प्रोनाउन अपने ऊपर एक लिबादा उड़ाए ताकि नाउन बार बार सामने ना आए, तो अपने लिए आर्जी तौर पे नाउन अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़ लेता है जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं. एडजेक्टिव जो होता है वो बेसिकली जो है उसको उनकी वकालत करता है. फिर वर्ब जो आता है, वर्ब बेसिकली वो बताता है कि काम क्या हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, ये वर्ब की जिम्मेदारी. वर्ब हमें ये बताता है कि काम क्या हो रहा है. तो नाउन चीज़ों पे नाम रखता है, प्रोनाउन उसके मुतबादिल लाता है, एडजेक्टिव आपको बताता है नाउन है कैसा, वर्ब जो है ना बताता है काम क्या हो रहा है. अब जब काम की जब बात होती है ना तो वहाँ पे टाइम आता है. काम, वर्क, जो काम हुआ अभी हुआ है, माजी में हुआ या फ्यूचर में होगा. अब हमें टेंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो टेंस का जो बेसिक फंक्शन होता है ना दैट इज़ विद वर्ब. और ये जो टेंस का चैप्टर डिस्कस भी होता है ना ये वर्ब में होता है हमेशा. क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये किस टेंस में हो रहा है, किस जन्म से. अभी हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस है. अब आते ही 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अभी जो टाइम काम जो भी होता है वो प्रेजेंट है, जो माजी में हुआ वो पास्ट है, जो फ्यूचर में होगा आने वाले दिन में होगा दैट विल बी फ्यूचर टेंस. अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये जो 3 हमने इनको कैटेगराइज किया. इससे फिर एक स्टेप थोड़ा आगे जाएं तो आपके पास सिंपल, जिसको आप इंडेफिनेट कहते हैं, कंटिन्यूस, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट प्रोग्रेस. अगर काम होता है तो ये सिंपल है, इंडेफिनेट है. अगर अभी होता है तो प्रेजेंट सिंपल है, माजी में हुआ तो पास्ट सिंपल है, आने वाले दिनों में होगा तो फ्यूचर सिंपल है.
ये इसका मतलब है, ये बताता है कि काम होता है, काम जारी है थोड़ी देर के लिए, तो हम कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। आई टीच, ये प्रेजेंट सिंपल है। आई एम टीचिंग, अभी ये काम जारी है। व्हेन द एक्शन इज अ कंटिन्यूस, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आप तब लगाते हैं जब कोई भी काम थोड़ी देर के लिए जा रहा हो। इसमें जो मेन चीज़ है कंटिन्यूस में और परफेक्ट टेंस के अंदर जो बुनियादी फ़र्क है, दैट्स ओनली सिंपल टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड्स, फॉर शॉर्ट स्पेन ऑफ अ टाइम। थोड़ी देर के लिए जब काम होता है तो हम सिंपल कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। जब वही काम ज़्यादा देर के लिए होता है देन वी यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूस, मीन्स वी आर गोइंग टू डू एक्शन फॉर अ लॉन्गर पीरियड्स। तो काम होता है इंडेफिनिट, काम जारी है कंटिन्यूस। जिसको आप कंटिन्यूस कहते हैं इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इट्स सेम, कुछ बुक्स में वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखा होगा, कुछ बुक्स में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस लिखा होगा। तो नाम में आपको उलझन की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब काम कंप्लीट हो जाता है देन वी यूज़ परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स द वर्क इज़ डन, इट्स कंप्लीटेड। अब काम अभी मुकम्मल हुआ है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कहें, अगर माजी में हुआ है तो पास्ट परफेक्ट है, अगर आने वाले दिनों में कंप्लीट हुआ है तो दैट्स अ फ्यूचर परफेक्ट। फिर अगर काम ज़्यादा देर के लिए जारी है तो ये है परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब जिस तरह मैंने कहा ना कि सिंपल प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव या सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में जो फ़र्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम के दौरान ही का। अगर कोई भी काम थोड़ी देर के लिए जारी है तो आई एम टीचिंग। अब अगर मैं कहूँ कि मैं जो है ना वो 17 साल से पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग फॉर 17 ईयर्स, क्योंकि अब काम का दौरानिया ज़्यादा हो गया ना, तो ये मैंने कहूँगा आई एम टीचिंग। अब होगा कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 17 ईयर्स। रीज़न, क्योंकि काम का दौरानिया ज़्यादा है। आप क्या करें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई फादर। आप कब से इंतज़ार करें, मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब जब आपने कहा ना सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, अब देखिए काम का दौरानिया बढ़ गया, इंतज़ार करने का दौरानिया बढ़ गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि आई एम वेटिंग, नो, अब आपको कहना पड़ेगा आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। फिर यहाँ पे सिंस और फॉर के इस्तेमाल को हम देखते हैं। सिंस का मतलब ये, सिंस हम तब यूज़ करते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ की शुरुआत बता दें। सिंपल बिगिनिंग ऑफ ए टाइम, बिगिनिंग ऑफ एन एक्शन, तो आप सिंस लगा दें। मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ ना, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2002। मैं 8 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आप देखिए 8 बजे हमें सिर्फ शुरुआत बता रहे, बिगिनिंग। अब कितना टाइम गुजरा ये हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8 AM। अब आप खुद तय करेंगे कि अभी क्या टाइम हुआ है, मुझे कितने घंटे पढ़ाते हुए। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 7 PM। अब आप खुद तय करेंगे कि कितने देर से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, दैट्स वेरी टेक्निकल। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें टाइम पीरियड को काउंट करके बताना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम सिर्फ शुरुआत बता देते हैं, फिर आगे जो है ना वो जो भी टाइम होता है, दौरानिया होता है, पीरियड जो होता है, वो उसको उस पर डिपेंड करता है, उसको कैलकुलेट करना होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, मैंने टीचिंग 2002 में शुरू की थी। अब अगर मैं CV में लिखूँ कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 18 ईयर्स, फिर साल के बाद मुझे चेंज करना पड़ेगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 19 ईयर्स, फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स। हर साल देखें फॉर लगाकर मुझे हर साल उसको कैलकुलेट करना पड़ रहा है और चेंज करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे मैं सिंपल कह दूँ कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2002, तो बस ख़त्म। अब आपने खुद काउंट करना है कि अभी ये 2018 चल रहा है तो कितने हुए, 19 चल रहा है तो कितने हुए, 20 चल रहा है तो कितने हुए। इसमें आपको बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट्स वेरी एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो काम होता है इंडेफिनिट, काम जारी है कंटिन्यूस, काम मुकम्मल हो चुका है परफेक्ट, और काम ज़्यादा देर के लिए जारी है, दैट इज़ अ परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो टेंस है 12 टेंस जिसके लिए हम बहुत अरसे तक परेशान रहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। और ज़्यादा अरसे तक आपका टाइम जो है इनको जो है वो उनके साथ उलझने में गुजर जाता है।
तो सिंपल, इसके पहले तो आपको टेंसेस के कंसेप्ट रखें कि ये है क्या। अब अगर सिंपल है, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, आई टॉट मैंने पढ़ाया था, आई शैल टीच मैं पढ़ाऊँगा, दैट्स अ पास्ट। आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, काम जारी है। आई वॉज टीचिंग मैं पढ़ा रहा था, काम माजी में जारी था। आई शैल बी टीचिंग, काम फ्यूचर में जारी है। आई हैव टॉट मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैड टॉट, आई शैल हैव टॉट। ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच। जो है ना ज़्यादातर हमारा टाइम जो है ना स्टूडेंट्स को वो ग्रामर में और ग्रामर की अजीब अजीब जो है ना वो चीज़ों में स्टूडेंट्स को उलझाया जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ कि जो इस टेंस को पढ़ाने में हमारी कितनी एनर्जी और टाइम ज़ाया हो गया। हम उसको छोटी सी वीडियो को एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम टेंस पे जाएंगे। प्लीज़ वेलकम। We don't write a letter. You don't write a letter. You don't write a letter. They don't write a letter. They don't write a letter. He does not write a letter. He does not write a letter. She does not write a letter. She does not write a letter. Right. Present continuous. Present continuous. रहा है नहीं है, रहा है नहीं है। रहा है नहीं है, रहा नहीं है। रहा है नहीं है। रहा नहीं है। I am writing a letter. I am writing a letter. We are writing a letter. We are writing a letter. You are writing a letter. You are writing a letter. Right. 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 Right. Present perfect. चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। चुका है, चुकी है, लिया है। I will, you, they, have. I am, you, they, have. He, she, Ram, Sita, has. He, she, Ram, Sita, has. I have taken the pizza. I have taken the pizza. We have taken the pizza. We have taken the pizza. You have taken the pizza. You have taken the pizza. Take. Taken the pizza. Past indefinite. Past indefinite. Tata didi dekhe. Tata didi देते. Ya. E. या. E. I went to. Now you can imagine that what is going on in during the teaching of a tense. Okay, that is more than a disaster what we are doing. That was just मैंने आपको जस्ट एक लुक दिखाया कि किस तरीके से जो है ना वो टेंसेस में इस बेचारी कौम को उलझा दे के मार दिया गया है। और इतनी एनर्जी अगर और क्रिएटिव चीज़ों पे लगाई जाती, इतने ज़ोर के साथ तो हम बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे। तो बहरहाल दैट इज़ ए काइंड ऑफ ए ट्रेजरी जो मैंने आपको दिखाई कि क्या जो है ना वो टेंस को पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से उस चीज़ को जो है ना वो पढ़ाया जा रहा है। तो बहरहाल
ये जस्ट एक झलक थी इस चीज़ को समझने के लिए कि हाउ दीज थिंग्स आर मूविंग. Now let us understand that what the tenses are there. Here it is the first tense, present indefinite tense. अब देखिए बुनियादी तौर पे मैंने आपको बताया कि we have 4 tenses, present, past, future. 3 tenses, present, past, future. प्रेजेंट आपके मौजूदा वक्त की बात करता है, पास्ट माजी की बात करता है, और फ्यूचर जो है ना वो आने वाले दिनों की बात करता है. प्रेजेंट टेंस पे जब हम आते हैं तो आपके पास जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें या इसको सिंपल टेंस कहें. ये आपको सिंपल बताते हैं कि आपके पास जो काम होता है कि आई टीच, आई डोंट टीच, आई शी टीचेस, आई शी डजंट टीच, तो हम इसको यूज़ करते हैं सिंपल जो है ना वो एक्शन में कि जो काम हो रहा है, जो अभी काम होता है, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तौर पे यूज़ करते हैं. अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, जो आपके पास डू या डज लगाते हैं कि आई राइट, आई डोंट राइट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ एस लगा देते हैं, जिस तरीके से आई राइट बट शी राइट्स, आई राइट, शी राइट्स, ही राइट्स, दे राइट. जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाते. जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहाँ पे हम जो है ना वर्ब के साथ एस लगाते हैं. लेकिन आई गो के सिंगुलर है लेकिन वो एस नहीं उठाता. आई टीच, वी टीच, यू टीच, ही टीचेस, शी टीचेस, दे टीच, और वन टीचेस, इस तरीके से. और जब हम इसको नेगेटिव करते हैं तो जहाँ पे हम एस लगाते हैं वहाँ पे डू के साथ में हम एस लगाकर उसको डज बना देते हैं. जिस तरह आई टीच, आई डोंट टीच, वी टीच, वी डोंट टीच, शी टीचेस, शी डजंट टीच, ही टीचेस, ही डजंट टीच. तो इस तरीके से हम प्रेजेंट जो है ना वो इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं. फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो आपको बताता है कि जो काम है वो जारी है. कितनी देर, जो अगर थोड़ी देर के लिए जब वो काम जारी होता है तो वो यूज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव टेंस. लेकिन इससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है ना वो अपना कंटिन्यूस टेंस ले जाने से पहले हम जो है ना वो इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस्तेमाल पढ़ेंगे. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इस्तेमाल है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है. आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए ये बड़ी अहम बात है इस टेंस के लिए. पहला इसका रूल है कि टू मेंशन हैबिट्स आर रूटीन इन अ प्रेजेंट. कोई भी आपका जो काम, वट एवर यू डू इन अ प्रेजेंट टाइम, दैट इज़ योर. मिसाल के तौर पे मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरी रूटीन है, मेरी हैबिट है. मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. जब आप लोगों से पूछते हैं कि जी आप क्या करते हैं, जी मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं जो है ना वो पढ़ाता हूँ. इन तमाम चीज़ों के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. I teach at a university, I work in a hospital, I play music. तो आपका जो टेंस का जो रोल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंट हैबिट्स को बताने के लिए. जिस तरह यहाँ पे लिखा आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जब हमें बताना होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ से मुराद ये है कि जो भी आफाकी सच्चाइयाँ हैं. सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, सूरज मशरिक़ में गुरूब होता है, ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूमती है, पानी अपनी लेवल को बरकरार रखता है. कि इस तरह के जो आफाकी सच है, यूनिवर्सल मीन्स कायनाती आफाकी सच, ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दैट वाटर कीप्स इट्स लेवल, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूमती है. ये देखिए कुदरती सच है, इनको ज़ाहिर करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया जाता है. और दूसरी बात है कि जब कभी आप कोई किस्सा, कोई वाक़या बता रहे होते हैं, जब आप किसी पोइट्री में उसकी समरी लिख रहे होते हैं, अक्सर जो 9th एंड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, तो आपको ये टेंस यूज़ करना पड़ता है कि daffodils in the poem of daffodils Wordsworth says या Wordsworth writes. तो आप जो है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं. और कभी कभार आप कोई वाक़या बताते हैं तो भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेना पड़ता है. कभी कभार किसी नावल की आप स्टोरी लिखते हैं या आप किसी मूवी की स्टोरी लिख रहे होते हैं, तो ये क्रिएटिव राइटिंग या दूसरी राइटिंग्स के अंदर जो ना आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी हम जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेते हैं. द पोइट प्रेजेस द डैफोडिल्स इन द पोएम. देखिए प्रेजेस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा यूज़ कर रहा है.
या जो है ना वो मैं फ़िल्म देख रहा था, हीरो कम्स एंड प्रोटेक्ट्स द हीरोइन, हीरो कम्स एंड प्रोटेक्ट्स, हीरो आता है हीरोइन को बचाता है। दैट इज़ वे दीज आर द सिचुएशंस वेयर वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप इसको हैबिट के लिए यूज़ करते हैं, आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज़ करते हैं, आप अपने किस्सा, वाक़या, समरी, नावल की पोइम को समराइज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिर कोई भी काम जो अभी प्रेजेंट टेंस में होता है, मिसाल तौर पे आई टीच, दे वर्क, ही प्लेज, उसके लिए यूज़ करते हैं। और जब आप डेफिनेशंस लिखते हैं ना चीज़ों की, तो ऑलवेज यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, द एडजेक्टिव एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे हम एड्स लगा रहे हैं, ये क्या है, दैट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डेफिनेशंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। या कोई आप किसी चीज़ का कोई प्रोसेस बता रहे होते हैं कि द स्नेक इन द शेक इन द प्लेट्स ऑफ द अर्थ काजेज एन अर्थक्वेक, जो प्रोसेस होता है कोई कुदरती, जब ज़मीन की प्लेट्स में झटके आते हैं तो ज़िलज़िला आता है, द शेक्स इन द प्लेट्स। ओके, काजेज एन अर्थक्वेक, काजेज, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो या ये जो नेचुरल एक्सप्रेशंस जिस तरीके से होते हैं कि आई सी, आई लाइक, अच्छा इसमें आप ये ना लगाया करें आई एम लाइकिंग, आई एम सीइंग, ठीक है ना, या आई एम लिसनिंग, आई एम टेस्टिंग। तो ये जो नेचुरल एक्सप्रेशंस हैं, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, कंटिन्यूस ना लगाया करें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इसका 8वां जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है वो ये कि जब न्यूज़ वगैरह में आप देखते हैं, टीवी वगैरह पे ख़बरें आती हैं, तो भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं कि बस कल्टी होती है और 15 लोग मर गए। द ट्रेन डीरेल्स एंड किल्स 75 पैसेंजर्स। द ट्रेन डीरेल्स, अक्सर आप न्यूज़पेपर वगैरह पे या न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो हेडिंग्स आती है, यू ऑफन फाइंड देम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द ट्रेन डीरेल्स एंड किल्स 75 पैसेंजर्स। ओके, तो ये जो है ना वो अच्छा। और फिर हम इसको फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं कि दे लीव टुमारो। अच्छा, ये बात थोड़ा आप जहन में रखिएगा कि जब हम इसको फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं तो ये बात आप मैं कहना ही कम्स टुमारो, तो भी आप जो है ना वो इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्ट स्ट्रक्चर है, थोड़ी स्ट्रेंज है, लेकिन ये यूज़ होता है या लोग कर सकते हैं। बाकी एक हम यूज़ करते हैं इसको प्रेजेंट कंडीशनल के लिए। इफ़ माई फादर कम्स आई विल इन्फॉर्म यू। देखिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, प्रेजेंट फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। कंडीशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली कंडीशन ये होती है कि वो काम जो अभी अगर शर्त पूरा होगा तो कोई काम होगा, जो आप शर्त रखते हैं वो इफ़ में रखते हैं। इफ़ माई फादर कम्स, अगर मेरे पापा आते हैं मैं आपको बताऊंगा, ये कंडीशन है। जो कंडीशन है वो इफ़ में रखेंगे और जो दूसरा जो पार्ट होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे। इफ़ फादर कम्स आई विल इन्फॉर्म यू, अगर पापा आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे विल भी यूज़ होता है, वुड भी यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे आप अगर चाहें तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लगा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इफ़ माई फादर केम आई विल इन्फॉर्म यू। अच्छा, इसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों सेम मीनिंग है। अगर पापा आते हैं मैं आपको बताऊंगा, अगर पापा आए तो मैं आपको बताऊंगा। चूँकि सिंधी उर्दू में आप ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। आप सिंधी में भी कहते हैं कि अगर पापा आते, सॉरी उर्दू में कहते हैं अगर पापा आते हैं, ये ताती, दैट इज़ अ साइन ऑफ ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर हम ये भी कहते हैं कि अगर पापा आए तो मैं आपको बताऊंगा, आए, ठीक है, ये पास सिंपल की साइन है। तो दोनों करेक्ट हैं। जिस तरह सिंधी उर्दू में दोनों करेक्ट हैं, इस तरह अंग्रेज़ी में भी दोनों करेक्ट हैं। आप ये भी कह सकते हैं इफ़ माई फादर कम्स आई विल इन्फॉर्म यू। अगर आप ये कह रहे हैं कि इफ़ माई फादर केम आई विल इन्फॉर्म यू। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपने इस्तेमाल देखे कि आप इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स में। ये जो है ना आपको बताता है कि जो काम आप जो है ना अपना प्रेजेंट कंडीशन है, जब ये पास्ट कंडीशन में जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, इसको हमें जो है ना वो परफेक्ट में लगाना पड़ेगा और उसमें वुड को परफेक्ट करना पड़ेगा। वो सेकंड कंडीशन है। इफ़ माई फादर हैड कम आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। अगर पापा आते तो मैं आपको बताता, वो पास्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, उसको हम कंडीशनल में पढ़ेंगे। तो ये एक जो है ना आप यहाँ पे कंडीशन के लिए भी इसी को यूज़ करते हैं कि इफ़ फादर कम्स। तो ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस्तेमाल। अब हम जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको ये बताता है कि जो काम है ना वो जारी है। आई थिंक दैट वी शुड गो विद दिस स्लाइड, दैट इज़ सफिशिएंट।
ये आपको सिंपल बता रहा है कि जो काम है वो कंटिन्यूस से जारी है। इसमें जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज़ एम आर होते हैं और यू सिंपली यूज देम। ओके, आई एम राइटिंग ए लेटर, यू आर नॉट प्लेइंग वेल, या आर दे फोनिंग, ओके, आर दे कॉलिंग, इज़ शी नॉट वीपिंग फॉर हर मदर। तो ये इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने का तरीक़ेकार है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर हम यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल होता है तो हम आर यूज़ करते हैं। आई के साथ हम जो है हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं। आई एम वेटिंग, शी इज़ वेटिंग, दे आर वेटिंग। आई एम नॉट वेटिंग, दे आर नॉट वेटिंग, शी इज़ नॉट वेटिंग। आर यू वेटिंग, ये सवालिया है। इज़ शी प्लेइंग, ये सवालिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको बताता है कि कोई भी काम जो है ना वो फॉर शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, थोड़ी दोहराने के लिए यूज़ होता है, तो वी यूज़ इट फॉर शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। इट शो दैट द एक्शन इज़ गोइंग ऑन बट दैट इज़ फॉर शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको बताता है कि काम जारी है। अब चूंकि ये प्रेजेंट है तो ये बताएगा थोड़ी देर के लिए, अभी जारी है। अगर इसको माजी में ले जाओगे दैन इट विल बी पास्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर में ले जाओगे दैट इट विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस। अब जो इसके इस्तेमाल है वो इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये हम यूज़ करते हैं कोई भी काम जो अभी हो रहा है ना, वी यूज़ इट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई एम राइटिंग ए लेटर, शी इज़ वेटिंग, दे आर प्लेइंग, ये फर्स्ट जो है ना इसका बेसिक है। आई एम राइटिंग पहला इसका इस्तेमाल है। दे आर कमिंग, शी इज़ वेटिंग, माई मॉम इज़ कुकिंग फूड, दैट्स अ फर्स्ट हो गया। अच्छा, एक इसका इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल इन एक्शन हैपनिंग नाउ बट नॉट नेसेसरी टेकिंग प्लेस वाइल स्पोकन आउट। एक ऐसा काम है जो हो रहा है, जारी है, ज़रूरी नहीं जब आप उसका डिस्कस करें तब वो काम हो रहा हो। जिस तरह कभी कभार आप कहते हैं मैं आजकल शेक्सपियर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम होटल पे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं कि मैं जो आजकल जो है ना वो शेक्सपियर पढ़ रहा हूँ। ये जो ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल है कि कोई काम जो जारी है, ज़रूरी नहीं जब आप उसका जिक्र करें उस टाइम वो जारी हो, लेकिन उन दिनों के अंदर वो काम जारी है, प्रोग्रेसिव है, तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक ये भी इस्तेमाल है। आई एम वर्किंग इन अ हॉस्पिटल नाउ इट इज़, आजकल मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट नाउ इट इज़, आजकल जी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आई एम स्टडिंग शेक्सपियर्स नाउ इट इज़, आजकल जी मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, जो हम उसके पहले यूज से हट करें। तीसरा, एन एक्शन दैट इज सपोज टू टेक प्लेस इन अ फ्यूचर टाइम बट इट्स टाइम इज फाइनलाइज्ड। एक काम है जो होगा फ्यूचर में, लेकिन उसका टाइम अगर तय हो जाए तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू कराची टुमारो। अच्छा, मज़े वाली बात है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स आप सिंधी उर्दू में देखें तो भी आप यूज़ करते हैं। अला सुभाणे कराची वञी रहियो आहियां, हाणे वञी रहियो आहियां, ॾिसो आहियां जी ॻाल्हि आहे प्रेजेंट, मैं कराची जा रहा हूँ, ये देखिए प्रेजेंट की बात है। लेकिन आप कहते हैं मैं कल कराची जा रहा हूँ, कोई काम हो तो बताओ, सेम थिंग इज देयर। आई एम गोइंग टू कराची टुमारो, इट्स द सेम थिंग व्हेन एज द वे यू यूज दीज टेंस स्ट्रक्चर्स इन योर लैंग्वेज, उर्दू स्पेशली एंड इन सिंधी एज वेल, सेम इज हियर। So you can use these are three possible use of continuous tense। एक कोई काम थोड़ी देर के लिए जारी हो, एक वो काम जो उन दिनों में उन टाइम में हो रहा हो, ज़रूरी नहीं जब आप उसका जिक्र कर रहे हो उस टाइम हो रहा हो, मैं ये आजकल शेक्सपियर पढ़ रहा हूँ, और तीसरा जो है मैं कल कराची जा रहा हूँ, ये भी है देखिए फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल है। नाउ कम टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस आपको बताता है कि जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। इसमें आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ या हैव आते हैं, ये आपको बताता है कि जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आई हैव रिटन ए लेटर, शी हैज़ नॉट डिस्पैच्ड द लेटर, हैव यू अपीयर्ड इन द कोर्ट, हैज़ शी नॉट टेकन द एग्जामिनेशन। सो ये जो ना आपको बताता है कि इसमें काम कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट टेंस बताता है, इंडेफिनिट बताता है काम होता है, कंटिन्यूस बताता है काम प्रेजेंट में जारी है थोड़ी देर के लिए, परफेक्ट बताता है काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज़ लगाएंगे। देखिए यहाँ पे शी के साथ हमने क्यों हैज़ लगाया है, शी सिंगुलर है। बाकी जो प्लूरल है, आई भी सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब उठाता है। आई हैव यू, सवाल बनाना है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे रखते हैं तो सवाल बन जाता है ना। हैव यू अपीयर्ड इन द कोर्ट, तो ये दिस इज इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव।
तो परफेक्ट आपको बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखें एक्शन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम, कोई भी काम जो अभी मौजूदा वक्त में कंप्लीट हो गया यू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव रिटन ए लेटर, या कोई भी काम जो ज़्यादा देर के लिए जारी है, कंटिन्यूस फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इन ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम। ओके, आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं आपके लिए 2 घंटे इंतज़ार कर चुका हूँ। देखिए ये अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, देन यू हैव टू गो टू परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन अगर ये कि मैं आपके लिए 2 घंटे इंतज़ार कर चुका हूँ, जी हम आपके लिए 10 घंटे इंतज़ार कर चुके हैं, इन दैट सेंस आप परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं और ये स्ट्रक्चर वैलिड है। नंबर 3, इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ अ पास्ट परफेक्ट इन ए प्रेजेंट टाइम। वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस अ बिट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड टाइम। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इक्विवेलेंट है, जो वो काम पास्ट में कहता है कि वो ये प्रेजेंट में कहता है कि ये काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये परफेक्ट टेंस के जो इस्तेमाल है ये आपको बताता है कि ये तकरीबन इसके 3 इस्तेमाल है। अब हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको ये बताता है कि काम जो है ना वो ज़्यादा देर के लिए जारी है, जिसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया कि सिंपल कंटिन्यूस बताता है कि काम थोड़ी देर के लिए जारी है, ना परफेक्ट कंटिन्यूस बताता है कि काम जो है वो ज़्यादा देर के लिए जारी है। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल कंटिन्यूस एंड अ परफेक्ट कंटिन्यूस। सो व्हेन यू यूज़ सिंपल कंटिन्यूस पर्टिकुलर, तो उसमें आपका मतलब है कि काम थोड़ी देर के लिए जारी है। अगर आप मुझसे पूछते, कोई अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कोई मुझसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं कहूँगा आई एम टीचिंग। यहाँ पे मैं परफेक्ट कंटिन्यूस ना यूज़ करूँगा, आई विल यूज़ परफेक्ट सिंपल कंटिन्यूस। आई एम टीचिंग, ये आप क्या कर रहे हैं, आई एम वेटिंग, आई एम हैविंग फूड। अच्छा, अब अगर कोई मुझे कहे कि जी व्हाट आर यू टीचिंग, मैं कहूँगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, फिर भी मैं सिंपल कंटिन्यूस यूज़ कर रहा हूँ। अगर वो मुझसे पूछेंगे कि कितने अरसे से आप अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हो, तो अब मैं परफेक्ट टेंस यूज़ करूँगा कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं फॉर का इस्तेमाल करूँ या सिंस का इस्तेमाल करूँ। अगर मैं सिंस इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, तो फिर ये होगा कि वो शुरुआत बताएगा, और अगर मैं फॉर का बताऊँगा तो फिर टोटल पीरियड ऑफ ए टाइम, टोटल प्रोनाउंस इट टोटल पीरियड ऑफ total, so you have to mention the total period of a time. For I have been teaching English for 10 years at Paragon English Language Academy. अब ये उस टाइम पे लिखा गया for 10 years. आज अगर देखा जाए तो ये 18 ईयर बन चुका है, 19 years, okay, because I started teaching in 2002 and it has become 18 to 19 years. Oh my God, that's very good deal. तो यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे फॉर लगाया ना, तो अभी ये हर साल मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे सिंस लगा दूँ कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002 एट पैरागन इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी बदीन अशोके, तो ये फिर जो है मुझे कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा। So she has not been writing as a freelancer journalist since 1999. Since यहाँ से जो ये नेगेटिव सेंटेंस है, that show the negations, okay. तो since जो है ना, that show the point of a time, जहाँ से काम शुरू हो रहा है, or beginning of an action, okay, that's where you use the time, beginning of an action. Whereas जो है ना, far denotes the total amount of period, okay. Whatever the total period, total amount or period of a time or an action. So ये जो है, I have been teaching English since 2003, show the beginning. I have been teaching English for 7 years, that show the total period of a time. ये जो since और for का इस्तेमाल है, जो तकरीबन हर छोटी मोटी टेस्ट के अंदर जो है ना वो आता है। हाँ, यहाँ से जो फ्राम हम कब लगाते हैं, फ्राम जो हम तब लगाते हैं कि जब हमें बिगिनिंग बतानी हो और एंड भी बतानी हो, तब हम फ्राम टू बताते हैं। और फिर हम टिल भी लगाते हैं, टिल में हमें सिर्फ एंड बताना होता है। जिस तरह खाली शुरुआत के लिए हम सिंस लगाते हैं, और मैं कहूँ कि आई विल टीच यू टिल 5:30 o'clock, मैं 5:30 बजे तक पढ़ाऊँगा। यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, टिल। आई विल टीच यू टिल 5:30 o'clock। जी आप कब से पढ़ा रहे हैं, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 4 o'clock, मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सेंस लगा रहा हूँ सिर्फ शुरुआत के लिए, और सिर्फ आखिर को, एंड को बताने के लिए आई विल टीच यू टिल 5:30 o'clock, 5:30 बजे तक पढ़ाऊँगा, टिल। अब आई विल टीच यू फॉर 1.5 year,
1.5 घंटा, 1.5 टोटल पीरियड ऑफ ए टाइम। फिर आप शुरुआत और आखिर दोनों बताना चाहते हैं, तब आपको फिर फ्रॉम लगाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, I shall teach you from 4 PM till 5:30 o'clock। 4 से लेकर 5:30 बजे तक पढ़ाऊँगा। From 4 to 5:30 o'clock। ये जो है ना फ्राम, और फ्राम फिर जो है to को फॉलो करता है। फ्राम इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय to। ओके, सिंस सिर्फ बिगिनिंग बताता है। फॉर आपको सिर्फ टोटल पीरियड ऑफ टाइम बताता है। टिल सिर्फ एंड बताता है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो द एक्शन दैट रिमेन्स कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग टाइम, अगर कोई भी काम ज़्यादा देर के लिए जारी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है ना वो परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन कराची सिंस 99। ओके, सो जस्ट लुक एट इट। सिंस इज गोइंग टू शो द बिगिनिंग। द एक्शन दैट इज डन बट इट्स इन्फ्लुएंस येट प्रीवियस। अच्छा, कभी कभी ये देखिए, ये इसका नंबर 2 जो परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं है, बड़ा टेक्निकल है और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। और इस स्ट्रक्चर को, इस कंसेप्ट को भी काइंडली होल्ड कीजिएगा। देखिए ना, अब ये कहते हैं कि एक काम है दैट इज़ डन, वो काम हो चुका है लेकिन अभी उसका इन्फ्लुएंस जारी है। इस इन्फ्लुएंस येट प्रीवियस। आई हैव बीन वॉचिंग द प्लांट्स ऑफ माई क्लॉथ्स आर वेट। ओके सर, ये जो 8 नहीं है, ये आ है, इसको आर पढ़ा जाए, ये टाइपो है, यहाँ पे टी आ गया, दैट्स आर। मिसाल के तौर पे आपके कपड़े गीले हैं और मैं पूछूँ जी आपके कपड़े क्यों गीले हैं? सर मैं पौधों को पानी देता रहा था। हाँ ठीक है, मतलब वो काम जो है अभी तो मुकम्मल हो चुका है, मैं पौधों को पानी देता रहा हूँ, तो पौधों को पानी देता रहा हूँ, इसके लिए कपड़े जो है ना वो गीले। वी आर जस्ट यूजिंग इट लाइक दिस। सो So we use this. I have been watching plants. My clothes are wet because I have been watching plants. You can say that I have been raining. I have been walking in the rain. क्योंकि मैं बारिश में भीगता रहा हूँ। So इस सेंस के अंदर that is the second use of perfect continuous tense. This is a technical and we use it in our basic compositions level. अब आते हैं पास्ट टेंस के ऊपर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको बताते हैं कोई भी काम जो माजी में होता है, वी यूज दिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब डिड है और वैसे आप यू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपली आई रोट अ लेटर, आई सेंग अ सॉन्ग। हियर यू आर यूजिंग द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एंड योर हेल्पिंग वर्ब वुड बी डिड। ओके, आई सेंग अ सॉन्ग, आई डिडंट स्लीप, मैं नहीं सोया था। जब इसको नेगेटिव करें तो डिड लगाएं। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू डज लगाया था ना, यहाँ पे आपको सिंपल डिड लगाना पड़ेगा। और जब सवाल करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाएं। डिड यू शरीक, क्या आप चीखे थे, चिल्लाए थे? डिड यू नॉट ड्रीम, क्या आपने ख्वाब नहीं देखा था? तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपको बताते हैं जो काम जो है ना दैट्स टेकिंग प्लेस इन अ पास्ट। ओके, अब जो इसके इस्तेमाल है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पास्ट टेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है पास्ट सिंपल। इसका पहला जो इस्तेमाल है दैट इज़ कोई भी काम जो माजी में हुआ है ना, यू यूज़ इट लाइक दिस। द वर्क डन इन अ पास्ट टाइम, जो भी माजी में काम हुआ है वी यूज़ इट प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस को हम यूज़ करते हैं। ओके, पहला जो हम इस्तेमाल करते हैं द वर्क डन इन अ पास्ट टाइम। आई वेंट टू कराची यस्टरडे, जी मैं कराची गया था, कल मैं कराची गया था। ठीक है, ये भी पास्ट सिंपल के लिए यूज़। मैंने कल लेक्चर दिया था, हमने कल शॉपिंग की थी, ये पास्ट सिंपल है। दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वो काम जो माजी में हुआ, वर्क डन इन अ पास्ट फॉर इंडेफिनिट टाइम। अल्लाह क्रिएटेड एडम फ्रॉम क्ले एंड मड। ओके, मिसाल के तौर पे अल्लाह ने उसको पैदा किया मट्टी से। मिसाल के तौर पे कब हुआ? इंडेफिनिट टाइम। इंडेफिनिट टाइम मीन्स हमें कोई उसका पता नहीं है कि कितना माजी में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
ये आपको हेल्प करेगा। कितना भी माजी हो, इंडेफिनिट टाइम हो, आप यूज़ करें। यहाँ पे क्रिएटेड जो हमने यूज़ किया है ये इंडेफिनिट टाइम, ठीक है। द वर्क डन इन अ पास्ट फॉर डेफिनेट टाइम। अच्छा, कोई काम जो माजी में हुआ हो उसका टाइम पीरियड पता हो कि कब हुआ है। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। जिस तरह हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा कब, 1492। 1492 ये डेफिनेट टाइम है, या इंडेफिनेट टाइम में लिए आप लगा सकते हैं कि जो ने ये चीज़ हुई थी, ठीक है। मैं लिव्ड इन केव्स, इंसान गारों में रहा था, ये इंडेफिनेट पास्ट है, कितना कोई पता नहीं। मैं लिव्ड इन केव्स, इंसान गारों में रहा था, दिस इंडेफिनेट टाइम, इंडेफिनेट। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, एक बादशाह रहा था, दैट्स इंडेफिनेट टाइम, ओके। डेफिनेट टाइम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। फिर कोई कहेगा वास्को दी गामा डिस्कवर्ड केप ऑफ होप इंडिया टू द केप ऑफ होप इन 1498। ये दो बड़ी जो है ना वो सिग्निफिकेंट जो है ना वो एरियाज़ हैं। एक 1492 जब अमेरिका को ढूंढ के निकाला, 1498 ठीक इसके जो है तकरीबन जो है ना वो 6 साल के बाद वास्को दी गामा दूसरा जो पोर्चुगीज़ जो है ना वो नेविगेटर्स था जो यहाँ पे इंडिया आया था, कालीकट से होता हुआ, केप ऑफ होप से होता हुआ कालीकट पे आकर जो ये लंगर आजाद हुए, और वही रास्ता था जो बाद में अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल करके और हमें 150 साल तक जो है ना अपना गुलाम बनाए रखा। सो दैट्स व्हाट वी कैन यूज़ इट टू नो आर मेंशन द पास्ट साइन। कोई भी काम जो आप माजी के बारे में हो आप ये बताने थे। लास्ट ईयर ब्रॉट द हीट्स ऑफ प्लेयर्स, पिछले साल हमारे लिए बहुत सी खुशियाँ लाया, और हम ये कह सकते हैं कि जैसे 2020 हैज़ ब्रॉट सो मेनी मिजरीज टू अस। 2020 हमारे लिए बहुत ज़्यादा मिजरीज, बहुत ज़्यादा दुख लाया है इन द फॉर्म ऑफ COVID-19 एट्सेट्रा, ओके। फॉर द हैबिट्स ऑफ पास्ट, ओके। अच्छा, कोई भी काम देखिए, अब ये वही बात है जो आपने वहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट हैबिट्स का बताया था ना, कि जब आप यूज़ करते हैं कि आई टीच इंग्लिश में, जी अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, आई वर्क इन ए हॉस्पिटल में काम करता हूँ, जो प्रेजेंट हैबिट है। इस तरह कोई काम जो आपकी माजी की हैबिट थी ना, तो उसको आप पास्ट इंडेफिनेट में लगा दें। जी मैं हॉस्पिटल में मैंने काम किया, वर्कड इन हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल में काम किया। आई वर्कड एज ए टीचर, मैंने टीचर के तौर पे काम किया। शी लिव्ड इन कराची, वो कराची में रही थी, अभी रहती है, शी लिव्स इन कराची। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। शी लिव्स इन कराची, शी लिव्ड इन कराची। ही वर्कड इन हॉस्पिटल, ही वर्क्स इन हॉस्पिटल। वर्क्स प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, वर्कड पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अच्छा, फ्यूचर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं बतौर कंडीशन, जिस तरह मैंने आपको बताया था ऊपर कि हम इसको प्रेजेंट कंडीशन के लिए भी जो यूज़ करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को यूज़ करते थे, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस को भी यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ फादर कम्स आई विल इन्फॉर्म यू, अगर पापा आते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा है कि इफ़ फादर केम, बात वही है, अगर पापा आए तो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, इन दोनों सेंटेंस के मकसद में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने पहले बताया कि उर्दू सिंधी के अंदर आप दोनों सेंटेंस यूज़ करते हैं, आप प्रेजेंट भी यूज़ करते हैं, पास्ट भी यूज़ करते हैं। अगर पापा आते हैं मैं आपको बताऊंगा, अगर पापा आए, ये पापा आए ये पास्ट है, अगर पापा आते हैं ये प्रेजेंट है। जेकर बाबा आयो ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि, आयो पास्ट आहे। जेकर बाबा अचे थो ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि, अचे थो, दैट्स अ प्रेजेंट। So we use both structures in the past and present. Here we have used this past indefinite इस condition के लिए, और ऊपर हमने present simple को भी use किया था conditions के लिए. So that these are the use of present in the past indefinite tense. Past continuous tense आपको यही बताता है कि कोई भी काम जब जारी हो तो we use a past continuous tense. That shows the action is a continuous for a longer period, for a short span of a time. कोई भी काम माजी में थोड़ी देर के लिए जारी हो, we use this present past continuous tense. मिसाल के तौर पे इसके पास helping verb was were use होते हैं, and it use the fourth form of verb what we call present participle. And this is what I was waiting for my father. मैं अपने पापा का इंतज़ार कर रहा था। आप हेल्पिंग वर्ब वाज लगा रहे हैं और वर्ब की आप फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। जिस तरह परफेक्ट टेंस में
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने बेयर इन्फिनेटिव लगाया, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आपने वर्ब की चौथी फॉर्म लगाई, परफेक्ट टेंस के अंदर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और फिर कंटिन्यूस टेंस के अंदर दोबारा वर्ब की आप जो है ना फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। जहाँ कंटिन्यूस होता है वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम इंग फॉर्म भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ किताब सिर्फ नाम चेंज करते हैं और उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आई वॉज वेटिंग फॉर माई फादर, मैं अपने पापा का इंतज़ार कर रहा था, दैट इज़ अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे थे। द टीचर वॉज नॉट डिलीवरिंग लेक्चर ऑन एसे, वॉज नॉट डिलीवरिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये काम माजी जो है ना वो जारी नहीं था। तो इस तरीके से हम जो है ना वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं कोई भी काम जो थोड़ी देर के लिए माजी में जारी रहा हो। अब आते हैं इसके इस्तेमाल कौन से होते हैं। इसका पहला इस्तेमाल ये कि कोई भी काम जो थोड़ी देर के लिए जारी हो, एन एक्शन दैट्स कंटिन्यूड इन अ पास्ट फॉर शॉर्ट स्पेन ऑफ ए टाइम, कोई भी काम थोड़ी देर के लिए जारी हो। आई वॉज वेटिंग फॉर माई ब्रदर, मैं ब्रदर का इंतजार कर रहा था थोड़ी देर के लिए। अच्छा, कोई काम जो जारी हो और दूसरा काम उसको इंटरप्ट करे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब दो टेंसेस के आगे चल के मैं आपको टेंसेस की कॉम्बिनेशंस भी बताऊंगा कि किस तरह टेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेंस कॉम्बिनेशन होती है उसमें अगर एक काम जारी हो और दूसरा काम उसको इंटरप्ट करे तो हम एक को पास्ट सिंपल में रखते हैं, एक को हम पास्ट कंटिन्यूस में रखते हैं। कैसे? जब आपने फ़ोन किया मैं सो रहा था। अब इसमें दो काम हो रहे हैं, एक है फ़ोन करने का, एक है सोने का। अब सोने का जो काम है ना वो जारी है और उसी को इंटरप्ट कौन सी चीज़ कर रही है? फ़ोन का अमल। जब आपने फ़ोन किया मैं सो रहा था, सोने का काम जारी है। When you phoned, I was sleeping. तो अब देखिए यहाँ पे दो टेंसेस की कॉम्बिनेशन है। पहला जो ये पार्ट है ना, when you phoned, ये है पास्ट सिंपल टेंस। I was sleeping, ये पास्ट कंटिन्यूस, और दो टेंसेस की कॉम्बिनेशंस पास्ट सिंपल की पास्ट कंटिन्यूस के साथ। इस तरह की कॉम्बिनेशन, अगर एक काम चल रहा हो दूसरी चीज़ जब उसको इंटरप्ट करती है तो जो काम कंटिन्यूस होता है हम उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लगाते हैं। जब आप आए मैं खाना खा रहा था, व्हेन यू केम आई वॉज हैविंग फूड, आई वॉज टेकिंग फूड। ओके, आना ये इंटरप्शन है और खाना खाने का काम जारी होना दैट्स अ कंटिन्यूस, आई वॉज हैविंग फूड। अच्छा, ये दूसरा इसका इस्तेमाल है और ये टेक्निकल है और इसको आपको टेंस कॉम्बिनेशंस में देखना होगा कि पास्ट सिंपल, जिस तरह इसमें पास्ट सिंपल को पास्ट कंटिन्यूस के साथ जो ना वो जोड़ा गया है, कॉम्बिनेशन की गई है। फिर दूसरी कॉम्बिनेशन ये भी होती है कि पास्ट सिंपल की हम जो कॉम्बिनेशन करते हैं वो पास्ट परफेक्ट के साथ करते हैं। वो टेंस की सेकंड कॉम्बिनेशंस होती है कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। अब देखें, जब ये काम हुआ तो ये काम जारी था तो पास्ट कंटिन्यूस था, लेकिन जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। अब देखिए, इसमें एक काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरा काम बाद में हुआ है। तो जो काम कंप्लीट हो चुका है ना उसको परफेक्ट टेंस में रखें, पास्ट परफेक्ट में। जो बाद में हुआ है उसको पास्ट सिंपल में रखें। दैट्स वेरी अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर्स कि व्हेन आई रीच रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। सो व्हेन आई रीच द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, व्हेन ही केम आई हैड फिनिश फूड। जब वो आया तो मैं खाना खा चुका था, काम कंप्लीट हो चुका था, आई हैड फिनिश फूड। व्हेन आई कॉल्ड हिम ही हैड स्लेप्ट। जब मैंने उसको फ़ोन किया वो सो चुका था। वो काम अगर कंप्लीट हो चुका है तो हम परफेक्ट लगाएंगे और अगर काम जारी है तो हम कंटिन्यूस लगाएंगे। व्हेन आई फोन ही वाज स्लीपिंग। जब मैंने फ़ोन किया वो सो रहा था। जब मैंने फ़ोन किया वो सो चुका था। तो अगर इफ़ यू आर यूजिंग आई, व्हेन आई कॉल्ड ही हैड स्लेप्ट तो वो सो चुका था। व्हेन आई कॉल्ड ही वाज स्लीपिंग तो वो सो रहा था। देखिए, दीज आर द टेक्निकलिटीज़ ऑफ द यूज़ ऑफ दिस टेंस। तो ये जो सिंपल जो आप टेंस की एक उसके इस्तेमाल पढ़कर बैठ जाते हैं, फिर जब आप एडवांस एप्लीकेशंस में जाते हैं तो फिर वो चीज़ें आपके सेंस में नहीं होती कि हाउ कैन यू यूज़ दिस टेंस फॉर डिफरेंट रीजंस। सो द एक्शन इन अ प्रोग्रेस इन अ पास्ट टाइम। ओके, कोई भी काम जो माजी में जारी रहा हो, दे वर कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रेनिंग विंग फॉर द टीचर,
वो टीचर्स के लिए विंग बना रहे थे, मकसद मादी में कोई काम जारी रहा हो तो हम यूज़ करते हैं, या कोई भी एक्शन जो है वो एक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट इन पास्ट विद नो कन्फर्म्ड एंड, दे वर ट्राइंग टू कम अप विद न्यू आइडियाज़ टू मीट द एक्सीडेंसी ऑफ ए टाइम और ज़रूरत के वो पूरा करने के लिए वो नए आइडियाज़ को जो है ना वो हासिल करने की, उनको लाने की कोशिश कर रहे थे। सो इस तरीके से, और ये बिल्कुल जो है ना वो इन लिeu ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वी वर गॉसिपिंग, वी गॉसिप्ड, वी वर गॉसिपिंग, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार पास्ट सिंपल की जगह पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ना लोग यूज़ कर सकते हैं कि हम जी वहाँ बातें कर रहे थे, मैं गया था, दोस्त मिले थे, हम बातें कर रहे थे, वी वर गॉसिपिंग एक्सेट्रा। तो दिस इज़ वे you can use this past continuous tense for these 5 possible reasons in your structures. Okay, past perfect पे जाते हैं। past perfect means the action which has been completed, जो काम complete हो चुका है। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और इसमें जो वर्ब यूज़ होता है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, या जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। और ये हैड इसका हेल्पिंग वर्ब होता है कि आई हैड एडिक्वेटली कंप्लीटेड माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मैंने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को काफ़ी हद तक एडिक्वेटली, काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुका हूँ, कर चुका था, क्योंकि ये हेड है तो ये काम मादी में कंप्लीट हुआ था, वी वुड यूज़ दिस परफेक्ट। ओके, शी हैड नॉट अडोर्न हर हाउस, ओके, उसने अपने घर को नहीं सजाया था, दैट इज़ अ नेगेटिव। हैड नॉट, सवालिया बनाना है तो हेड को आगे ले जाएं। हैड क्वेंट इज थर्स्ट, क्या वो अपनी प्यास बुझा चुका है, तो वी यूज़ दिस परफेक्ट टेंस फॉर दिस स्ट्रक्चर्स। ओके, कोई भी काम जो माजी में कंप्लीट हुआ है तो हम यूज़ करते हैं कि वी हैड फूड। ओके, या कोई भी काम जो इंटरप्ट हुआ हो, अब उसी सेंस में आगे जिस तरह ऊपर आपने बताया, मैंने आपको बताया था, एक तो इसका इस्तेमाल हो गया जो भी काम माजी में कंप्लीट हुआ, वी हैड फूड, हम खाना खा चुके थे, दे हैड स्लेप्ट, वो सो चुके थे, ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था। बट द सेकंड यूज़ इज़ दैट, जो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम यूज़ करते हैं कि ये टेंस की सेकंड कॉम्बिनेशन है कि पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट के साथ जोड़ना। व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन, जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, ये जो रीच है ये पास्ट सिंपल टेंस है। व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन, जब मैं ट्रेन पे पहुंचा, रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, हैड लेफ्ट, जा चुकी थी। अब देखिए इसमें दो काम हुए, एक इसके पहुंचने का, एक ट्रेन के जाने का। और जब दो काम हो रहे हों, अगर एक काम कंप्लीट हुआ है, दूसरा काम बाद में हुआ है, जो कंप्लीट हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में रखें, जो बाद में हुआ है उसको पास्ट सिंपल में रखें। जब वो आया, मैं सो चुका था, अब इसमें कंप्लीट कौन सा काम हुआ है, सो चुकने का, इसको परफेक्ट जो है ना पास्ट परफेक्ट में रखें। जब वो आया, इसको पास्ट सिंपल में रख दें। तो दिस हाउ यू कैन कंबाइन, जिस तरीके से आपने वहाँ पे किया था ना, व्हेन ही कॉल्ड आई वाज स्लीपिंग, आपने एक काम जारी था, दूसरे ने इंटरप्ट की, अब एक काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरा बाद में हुआ है। दैट्स द कॉम्बिनेशंस ऑफ पास्ट सिंपल with the past perfect. When I reached the railway station, past simple, the train had left, ये past perfect और के साथ इसकी कॉम्बिनेशन है। तो ये past simple का दूसरा इस्तेमाल, past perfect tense का दूसरा पॉसिबल इस्तेमाल है जो अब आप यूज़ करते हैं इस तरह के इंटरप्टेड एक्शंस को मैं क्लियर करने के लिए। द एक्शन रिमेन कंटिन्यूस फॉर पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, कोई भी काम जो माजी में जारी रहा हो काफ़ी अर्से तक, तो हम यूज़ कर सकते हैं। आई हैड वर्कड इन अ फर्म फॉर 2 years, मैं फर्म में 2 साल काम कर चुका था। अच्छा, अगर आप ये यूज़ करना चाहें कि मैं 2 साल काम कर रहा था, तो फिर आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना है, वो तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स में सिंपल जो है परफेक्ट टेंस है उसको भी लगाकर उसकी कंटिन्यूटी को ज़ाहिर किया जा सकता है, जो यहाँ पे यूज़ हुआ है। इट इज़ इक्वलेंट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इन पास्ट टाइम। ओके, जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करता है कि मैं आई हैव रिटन अ लेटर, तो ये उसका जो है वो पास्ट परफेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। दैट शोज लाइक दिस। ओके, तो ये जो है ना वो आई हैड वर्कड इन अ फर्म फॉर 2 years, मैं 2 साल फर्म में काम कर चुका हूँ, और ये जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बाय मॉर्निंग वी हैड रीच द डेस्टिनेशन एम्ड एट, सुबह तक हम पहुँच चुके थे। बाय मॉर्निंग वी हैड रीच, ओके, सुबह तक हम अपनी मंजिल पे पहुँच चुके थे। वी हैड रीच द डेस्टिनेशन एम्ड एट, जो हमने तय किया था, जिस मंजिल का सोचा था, हम वहाँ पे पहुँच चुके थे।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होते हैं और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाती है व्हाट वी कॉल प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसमें जो आप लगाते हैं कि आई हैड बिन राइटिंग अ लेटर न्यूज़पेपर फॉर 10 ईयर्स, अब वही फॉर और सिंस जो आपने सिंपल जो आपने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देखा था सिंस और फॉर का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी वही सेम रहेगा। आई हैव बिन वेटिंग अ लेटर, आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर इन अ न्यूज़पेपर फॉर 10 ईयर्स, दैट्स अफर्मेटिव। A boss had not been bullying his son since childhood, had not been bullying। to bully होता है किसको, जो है ना वो डांटना, हद से ज़्यादा डराना धमकाना। his son since childhood, had you been facing jerks and jolts of life since childhood, क्या आप बचपन से ज़िंदगी के ups and downs, jerks and jolts, झटके बर्दाश्त करते रहे। in that sense you can use this perfect past perfect, okay। the action which remains continuous for long span of time, कोई भी काम माजी में ज़्यादा देर के लिए जारी रहे हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं पास्ट। वी हैड बीन वर्किंग इन अ फर्म सिंस 1990, हम 1990 से फर्म में काम कर रहे थे, ये काम ज़्यादा देर के लिए जारी था। वी सिंपली यूज़ इट लाइक दिस, ओके। फॉर एन एक्शन डन इन अ पास्ट, ओके, कोई भी काम जो माजी में हुआ है फॉर पास्ट टेंस, ओके। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। या लिंक बताने के लिए सिंस दे हैड बीन वाचिंग द प्लांट्स, चूँकि वो पानी देते रहे थे, सो दे क्लास आर स्टिल वेट, उनकी क्लास अभी भी जो वेट है या उनके क्लासेस वेट थे, तो आप यहाँ पे पास भी लगा सकते हैं। तो दीज आर पॉसिबल रीज़न ऑफ पॉसिबल वे आर यूसेज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर पे आए, फ्यूचर इंडेफिनिट आपको बताते हैं कोई भी काम जो अभी फ्यूचर में होता है हम यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब शैल और विल आ जाते हैं। वर्ब हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं। आई शैल गो, वी शैल गो, बाकी ही विल गो, वी विल गो, दे विल गो, दे विल गो, और वी शैल, आई और वी दोनों के साथ शैल लगाते हैं जनरली, और बाकी के साथ हम विल लगाते हैं। तो आई शैल गो टू कराची, शी विल नॉट टेक अ कप ऑफ टी, विल इमरान राइट अ लेटर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको बताता है कि काम फ्यूचर में होता है। दोबारा मैं उसको रिकैप करूं कि इंडेफिनिट बताता है काम होता है, कंटिन्यूस बताता है काम जारी है, परफेक्ट बताता है काम परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूस बताता है कि काम ज़्यादा देर के लिए जारी है। अब अगर काम अभी होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, माजी में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। काम अभी जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, काम माजी में जारी था पास्ट कंटिन्यूस है, काम फ्यूचर में जारी होगा फ्यूचर कंटिन्यूस है। काम अभी कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अली एंड हिज सन विल, नो, अली एंड हिज सन विल, क्योंकि अली और जब दो सब्जेक्ट हो गए ना तो अब यहाँ पे आप शेल नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमें जो है ना विल लगाना होगा, सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगाना। इवन अगर मैं कहूँ कि आई एंड असलम तो भी विल लगेगा, आई एंड असलम विल गो टू कराची। बाकी अगर अकेला आई होगा तो मैं यूज़ करूँगा कि आई शैल गो टू कराची, वी शैल गो टू कराची, दे विल गो टू कराची, ही विल गो टू कराची, शी विल गो टू कराची। तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें जो है ना विल लगाना पड़ेगा, सिर्फ आई और वी को छोड़कर। अब जो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैं मेरी नज़र में ना, आप हैरान होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कितनी जगह पर काम करता है। अब देखिए, एक तो वो काम जो द एक्शन विच विल हैपन इन अपकमिंग या फ्यूचर टाइम, कोई भी काम जो आने वाले दिनों में होगा ना, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते कि आई शैल गो टू कराची टुमारो, कल मैं कराची जाऊँगा, ये एक इस्तेमाल है इसका। दूसरा, द एक्शंस विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, एक वो काम है जो हमारे कंट्रोल से ज़्यादा है, मकसद हमारे बाहर है, वो होने ही है, नेचुरली होने। द सन विल राइज एट 5:47 AM, सुबह 5:47 पे सूरज तुलू होगा। ये हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस तरह के स्ट्रक्चर्स रहेंगे। द हैबिट्स इन फ्यूचर टाइम, आई विल टेक एक्सरसाइज डेली, या कोई काम, एक तो अभी आपकी हैबिट है ना, आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं एक्सरसाइज डेली करता हूँ, लेकिन अगर इसको फ्यूचर में ले जाना चाहते हो तो आप यू कैन यूज़ आई विल टेक एक्सरसाइज डेली।
Generally, newspaper, magazines, newscasters use this tense to mention the events which are supposed to occur or take place in a future time. आम तौर पे अखबारात, मैगज़ीन्स, न्यूज़कास्टर्स जो ख़बरें पढ़ने वाले होते हैं यूज़ दिस टेंस, वो भी इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? टू मेंशन द इवेंट्स, उन वाक़यात को मेंशन करने के लिए विच आर सपोज टू अकर आर टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम, जो आने वाले दिनों में होने होते हैं. दे यूज़ इट. ओके. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल विजिट अमेरिका इन द नेक्स्ट मंथ. पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका को नेक्स्ट मंथ में विज़िट करेगा. ठीक है, ये हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं जो है ना वो को रेफ़र करने के लिए. अच्छा, फिर दूसरी बातें होती हैं वो प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स की होती है, लेकिन वो बात फ्यूचर की कहती हैं. जिस तरह देखें ना, गोइंग टू हम लगाते हैं, गोइंग टू भी ये बात फ्यूचर की कहता है. वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फेवरेट पार्टी इन द ऑनर ऑफ आउट गोइंग स्टूडेंट्स. अच्छा, ये गोइंग टू भी जो है ना ये है तो स्ट्रक्चर, लेकिन ये बात फ्यूचर की कहता है. हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फेवरेट पार्टी, हम फेवरेट पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं. गोइंग टू. अच्छा, एक तो हमने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल विजिट टू अमेरिका. अगर हम कहेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू विजिट अमेरिका, इज़ गोइंग टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, ये भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट की है, बात फ्यूचर टेंस की करा. फिर अबाउट टू विजिट, ये भी फ्यूचर के लिए यूज़ होता है. अबाउट जो होता है कि जो चीज़ अभी होने वाली हो, गाड़ी आने वाली है, इट इज़ अबाउट टू कम. बारिश होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू रेन. मैं क्लास ख़त्म करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू फिनिश, इट इज़ अबाउट टू रेन. ठीक है, ही इज़ अबाउट टू कम, आने वाला है. अच्छा, द यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर फ्यूचर. ओके. दे लीव टुमारो, वो कल छोड़ेंगे. अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी बता दो, इज़ टू भी हम लगाते हैं. ही इज़ टू कम, वो आने वाला है. ही इज़ टू लीव, वो जाने वाला है. दैट्स आल्सो प्रेजेंट, लेकिन जो बात फ्यूचर की हो रही है. द यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर फ्यूचर. फिर देखिए, आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी आप फ्यूचर के लिए यूज़ करें. वी आर गोइंग टू कराची टुमारो, कल हम कराची जा रहे हैं. दे लीव टुमारो, देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बात फ्यूचर की यूज़ करें. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, बात सिंपल की यूज़ करें. गोइंग टू, बात फ्यूचर की है. अबाउट टू, बात फ्यूचर की है. तो फ्यूचर को आप कितने तरीके से रेफ़र कर सकते हैं अंग्रेज़ी में, इस जो है ना वो टेंसेस में. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टू शो अ कंडीशंस. ओके. इफ़ माई फादर कम्स आई विल इन्फॉर्म यू. इफ़ माई फादर केम आई विल इन्फॉर्म यू. यहाँ पे देखें कि आप जो है ना वो प्रेजेंट टेंस के लगा रहे हैं, यहाँ पे आप पास लगा रहे हैं. अगर पापा आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, अगर पापा आए तो मैं आपको बताऊंगा. प्रेजेंट कंडीशन, पास्ट कंडीशंस बोथ आर. और ये दोनों बातें किसकी हो रही है? बात फ्यूचर की हो रही है. अगर पापा आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा. पापा आते हैं, ये कब आएंगे? आने वाले दिनों में आएंगे ना. तो बात बेसिकली फ्यूचर की हो रही है, लेकिन आप जो स्ट्रक्चर्स यूज़ करें दैट्स प्रेजेंट. यहाँ पे आप बात फ्यूचर की कर रहे हैं, आने वाले टाइम की, लेकिन जो आप यूज़ करें वो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे. इफ़ फादर केम. तो ये जो तरीक़ेकार शेयर और विल का है जो मैंने आपको बताया, ये तकरीबन जो है ना वो बुक्स में डिस्कस होते हैं. तो दैट इज़ वे वी जस्ट टेक दीज कंटिन्यूस. ओके. फिर पास्ट कंटिन्यूस से मुराद होती है वो काम जो पास्ट में जारी हो. वी यूज़ दिस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बताता है कि आपको बताता है कि काम जो है ना वो जारी है, पास्ट कंटिन्यूस थोड़ी देर के लिए. फिर आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, फ्यूचर कंटिन्यूस आपको बताता है कि काम फ्यूचर में जारी है. आई शैल बी टीचिंग, दे विल बी टीचिंग. फिर फ्यूचर परफेक्ट आपको बताता है कि जो काम कंप्लीट हो चुका है. ही विल हैव टॉट, शी हैज़ फिनिश्ड दिस, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क. तो जो काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है वो फ्यूचर परफेक्ट के जुमले में आता है. और अगर कोई काम आने वाले दिनों में ज़्यादा देर के लिए जारी रहे तो हम फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, वो 10 साल से पढ़ा रही होगी. मतलब वो काम जारी होगा लेकिन वो आने वाले दिनों में होगा. तो शी विल बी टीचिंग, वो पढ़ा रही होगी लेकिन वो 10 साल से पढ़ा रही होगी. शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years. तो ये जो है आप लगा सकते हैं. तो ये जो चीज़ें तकरीबन जो 12 टेंसेस की आज की क्लास में हमने कंबाइन किया, इसको वाइंड अप किया. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो
for the other areas of a tense and to understand. तो आज की इस क्लास के अंदर we covered that what are the basic structures of tenses, these 12 tenses, basic 12 tenses, but we don't call it. अब देखें, अब जब आप आगे जाते जाएंगे एडवांस जो ग्रामर में जाते जाएंगे पर्टिकुलर इवन एक जगह पर ऐसी भी आ जाएगी फंक्शन इंग्लिश, दे आर सिंपली डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज डिफरेंट टेंसेस. फिर वो कह रहे हैं कि सिंपल बस एक ही टेंस जाकर बचेगा जिसके अंदर या दो जो जिसके अंदर हम उन एक्शंस को रिलेट करेंगे. बट एक्चुअली देखें ना, इनके जो है ना, आप डेफिनेशंस में मत उलझें. आप इनके कंसेप्ट में देखें कि आपके पास लैंग्वेज में ये क्या किस तरह मीनिंग पे असरअंदाज हो रहे हैं, कौन सा टेंस कौन सी मीनिंग प्रोड्यूस करा है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ द की रोल. मैंने आज आपको स्ट्रक्चर्स सिर्फ समझाए, लेकिन मेरा जो पूरा फोकस था वो था व्हाट आर द यूसेस ऑफ ए पर्टिकुलर टेंस. एक टेंस की इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, इन विच कंडीशंस यू यूज इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टेक्निकल एंड वेरी रेलेवेंट. एंड अगर बाकी वो वैसे बैठकर जो आप रट्टा लगाते हैं, जो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि आई राइट ए लेटर, आई डोंट राइट ए लेटर, तो दैट इज़ useless. Don't go to that cramming. Okay, stop doing this. This will not give you any result, and it is not going to bring any positive change in your language. But by this mean, you can improve your language skill as well, and it will give you a bit a real acquaintance with the language components, language areas, and you could move forward for better understanding. So let us move forward towards this second part of semantics. We have talked too much about syntax today. Now let's move towards semantics, please.
what is the problem we have in our society, that is the product of respecting others. Okay, that is the key idea behind this video, that whatever you find, that the problem is that, okay, if you respect the people will respect you in a back. Okay, if you don't respect the people will not respect you in a back. So respecting others is the key of your life. Okay, and once upon a time there lived a girl, okay, got married into a family. Okay, the family she was married to, then her mother-in-law, okay, she was not a good, she was a very tough type of a lady, so they were not a good at terms. Every time they used to, अब देखें यहाँ पे मैं मॉडल वर्ब यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ना कंडीशनल, सॉरी अपना यूज टू, जो आपके माजी की आदत को बता, वो आपस में लड़ा करते थे, दे यूज टू, दे वुड आर्ग्यू, अक्सर बहस किया करते थे। ठीक है, अगर आप इस पास्ट हैबिट को अगर पास्ट सिंपल में भी रखें ना कि दे आर्ग्यूड एंड क्वारल्ड एंड आर्ग्यूड एवरी डे, तो भी सही हो जाएगा। आज मैंने जिस तरह पढ़ाया था कि पास्ट इंडेफिनेट को भी हम यूज़ करते हैं ना पास्ट हैबिट्स के लिए, इसी तरह हम मॉडल वर्ब यूज्ड को ब्रिटिश में वुड को अमेरिका में भी यूज़ करके हम पास्ट हैबिट्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। दे यूज टू, दे वुड आर्ग्यू, वो बहस किया करते थे। क्वारल, लड़ाई करना, झगड़े करना, जो घरों में जब कलिश होती है, क्वारल। एंड फॉल इनटू रूटीन बिकरिंग्स, बिकरिंग जो ये अनबन होती है घरों में, जो मुँहमारी होती है ये दिस इज़ बिकरिंग। ओके, ये आपको पता है घरों में रोज़मर्रा की रूटीन है जो चलती रहती है, और हम जो एक दूसरे के ऊपर कुछ सामने बोलते हैं और फिर जब बड़े होते हैं कोई बात कह देते तो फिर सामने नहीं बोल पाते, तो उनकी गैर मौजूदगी में फिर उनके ऊपर जो दुरुस्त सलाम आप भेजते हो, यू नो वेल। ओके, सो दिस बिकरिंग्स एंड स्कैबल्स, ओके, दे गो ऑन। देयर लाइफ वॉज फुल ऑफ डिस्ट्रेस, दे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, दबाव था, स्ट्रेस था, एंड अपहीवल, रोज़ कोई ना कोई जो है अपहीवल होते हैं कि चीज़ों में जो अप्स डाउन होते हैं, जो उसके अंदर परेशानियाँ होती हैं, दीज आर अपहीवल, दीज आर जर्क्स एंड जोल्स। ओके, सो शी वेंट टू हर फादर्स फ्रेंड टू गेट पॉइजनस हर्ब्स, वो अपने पापा के दोस्त के पास गई ताकि वो जहरीली जड़ी बूटियाँ ले सके। देखिए ये पॉइजनस एडजेक्टिव है, हर्ब्स को क्वालिफाई कर रहा है, क्या लेने के लिए? पॉइजनस हर्ब्स, जहरीली जड़ी बूटियाँ हासिल करने के लिए, टू किल हर। द पर्सन गेव हर सम हर्ब्स, उसने उसको कुछ जड़ी बूटियाँ दी, विद द सजेशंस, इस सजेशन के साथ दैट शी वुड बी काइंड, कि वो बहुत ज़्यादा मेहरबान होगी, पोलाइट एंड केयरफुल टू हर, कि वो उसके बहुत ज़्यादा मेहरबान होगी, पोलाइट होगी, केयरफुल होगी, सो दैट नन कुड सस्पेक्ट हर व्हेन शी वुड डाई। उसने कहा चूँकि आप उसको ये दवाई दे रहे, जहरीली दे रहे, तो आप उसके साथ आपका बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आप पे शक न करे। उस तबीब ने, हकीम ने उसको सजेस्ट किया, विद सजेशन दैट शी वुड बी काइंड। देखिए अब ये पूरी बात मैंने पास्ट में लिखी है ना, शी वेंट टू हर फादर्स फ्रेंड टू गेट पॉइजनस हर्ब्स टू किल हर, द पर्सन गेव हर, ये पास्ट सिंपल है, उसने उसको दी। मैंने आपको बताया था ना कोई भी, अब देखिए ये इंडेफिनेट पास्ट की बात कर रहा है, कब गई कोई पता नहीं, कब दी कोई पता नहीं, शी वेंट, ही गेव, उसने उसको दी। सम हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटियाँ दी, विद द सजेस्टन दैट शी वुड नॉट बी, शी वुड बी काइंड। अब वुड क्यों लग रहा है? क्योंकि वो उसने कहा था कि आप इससे मेहरबान होंगे। अब जो उसने कहा था वो माजी में कहा था, अब वो माजी चूँकि यहाँ पे जो है ना गुजर चुका है, तो हम विल का माजी बना रहे हैं वुड। शी वुड बी काइंड, शी वुड बी पोलाइट, शी वुड बी केयरफुल, वो मेहरबान होगी, वो नरम गुफ्तार होगी, वो बड़ी उसकी ख्याल रखने वाली होगी, जो है, सो दैट नन कुड सस्पेक्ट हर, ताकि कोई उस पर शक ना करता। कुड क्यों लगा रहे हैं? पास्ट की बात हो रही है, कैन का पास्ट टेंस यूज़ करें। शी कुड सस्पेक्ट, कि कोई भी इस पर शक ना कर सकता। हर व्हेन शी वुड डाई, जब उसने मरना था। शी फॉलोड द इंस्ट्रक्शन, अब देखिए ये पास्ट सिंपल है, उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। इंस्ट्रक्शंस टू लेटर एंड स्पिरिट, जूँ की थी उसने उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। विद इन अ फ्यू मंथ्स दे बिकेम काइंड टू ईच अदर, कुछ ही दिनों के पास वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मेहरबान बन गई। शी बिकेम काइंड टू ईच अदर, यहाँ पे मैं ईच अदर क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये दो हैं तो मैं ईच अदर लगा रहा हूँ, अगर दो से ज़्यादा होते तो हम वन एंड अदर लगाते। शी वेंट बैक टू द हर्ब्स, वो दोबारा हर्ब्स में गई। हर्ब सेलर टू सेव हर,
अब चूँकि वो मेहरबान हो गए, खाइंच हो गए और उनके एक दूसरे का ख्याल रखने लगे, तो दोबारा हकीम के पास गई कि आप ऐसा करें कि किसी तरीके से इसको बचाएं। तो हकीम ने ये कहा, बट केम टू नो दैट देयर वाज नो पॉइजन इन द हर्ब्स। हकीम ने कहा जो मैंने आपको दवाई दी थी, दे वर सिंपल विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स, और उसमें कोई जहर नहीं था। असल में जहर जो था वो आपके दिमाग में था, और जब से दिमाग से वो जहर निकल गया, अब वो नफ़रत ख़त्म हो गई। सो दैट इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम विद वी ऑल पीपल, ओके, वी हैव इश्यूज़ इन आवर एटीट्यूड्स, ओके, एंड दीज प्रॉब्लम्स they keep prolonging in our life and they keep victimizing us. So when we will change this thing, this will also change our life as well, okay. अब जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी रिगार्डिंग टीचिंग, अब हम उसी को रीड करेंगे और फिर हम इसी क्लास पे इसको जो है वो ख़त्म करेंगे। दैट हाउ these teaching pedagogies, they are simply going to impact our life. In this video we see a quack type teacher, एक जो नीम हकीम होते हैं ना, जो इन्हें हमें क्वैक कहते हैं। एक डॉक्टर्स होते हैं, क्वैक्स होते हैं। जो क्वैक्स जो होते हैं, जो नीम हकीम होते हैं, वी कॉल देम क्वैक। सो वी सी अ क्वैक टाइप टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश विद ग्रामेटिकल अप्रोच। वो ही पुरानी जो है ना वो आई राइट लेटर, आई डोंट राइट लेटर, विद दैट यूजिंग दिस, ओके। ही इज़ प्रोमोटिंग रोट लर्निंग। अच्छा, मकसद एक होती है कंसेप्चुअल स्टडी, एनालिटिकल स्टडी। हम चीज़ों को एनालाइज करें, उसके पार्ट को तोड़ें, उसमें देखें वर्ब कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है, नाउन क्या है, जिस तरह भी हम यहाँ पे इनमें सेंटेंसेस में इसको तोड़ रहे हैं। अच्छा, ये क्या होता था, शुरू में ये पढ़ाया जाता था कि आई राइट ए लेटर, आई डोंट राइट ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, शी डजंट राइट ए लेटर। फिर ये रट्टा लगवाया जाता था और वो समझते थे कि ये रट्टा लगा कर जो है ना स्टूडेंट्स सीख जाएंगे। जिस तरीके से हमारी बचपन की टीचिंग के अंदर भी यही चीज़ें हमने देखी थी कि टीचर एक सबक पढ़ा देता था, बाद में कहता था कि सिंधी में चुना बाण सबक के भेरो डई वठो। एक स्टूडेंट्स को आगे खड़ा कर दिया जाता था और फिर वो पढ़ता जाता था, बाकी उसको फॉलो करते थे। ये एक तरीक़ेकार था जिसको हम समझते थे कि इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सिखा सकते हैं, जो बहुत भयानक मेथड था टीचिंग का, और उसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो यही होता था, एक लड़का आगे, हिकिड़ो छोकिरो अॻियां बीह रहंदो हुयो, सीन ज़बर स बेज़बर ब कापेश को सबक जेको सो अलमंद आ नु नलफ ना आ ना, ऐं ॿिया उनखे रिपीट कंदा हुआ। दिस वॉज रियली a kind of approach. This is called rote learning. Rote learning कहते हैं रट्टा लगाना. This is called parrot learning. तोते की तरह पढ़ाना. We also call it cramming. So this is very bad thing. अभी भी rote learning चल रही है, parrot learning, cramming चल रही है। उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि आजकल जो इम्तिहान वगैरह, टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें भी सवाल वही आते हैं जो रोट लर्निंग के होते हैं। वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज़ुमरे में आते हैं। बहरहाल उसका किसी और कंटेक्स्ट में हम कभी डिस्कस करेंगे। बट ही इज़ प्रमोटिंग रोट लर्निंग। यू कैन राइट ए लेटर, दिस इज़ व्हाट इज़ दैट, सिंपली यू आर, द स्टूडेंट्स आर सिंपल रिपीटिंग। अब वो स्टूडेंट्स को ये पता नहीं हो रहा है कि वाई शी इज़ राइटिंग, वाई दे आर राइटिंग, वेयर इज़ एंड वाई दिस आर, व्हाट इज़ अ कंसेप्ट, व्हाट इज़ अ डिफरेंस ऑफ अ मीनिंग। वो नहीं, जस्ट जो है ना आप पढ़े जा रहे हैं और वो आपको जो है ना वो तोते की तरह फॉलो करते हैं। मिट्ठू मिट्ठू, मिट्ठू पुट, मिट्ठू पुट। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पैरेट लर्निंग एंड क्रैमिंग। ओके, वी डोंट लर्न बाय सिंपल रिपीटेशन। हम रिपीटेशन से नहीं सीखते। आवर टीचर्स हैव बीन यूजिंग दिस अप्रोच फॉर ईयर्स। हमारे टीचर सालों तक इस मेथड को यूज़ करते रहे, बट इट कुड नॉट ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन आवर स्टूडेंट्स। मगर ये मेथड कभी भी हमारे में पॉजिटिव चेंज नहीं ला सका। Nowadays we are using direct communicative methods of teaching of English. अब जो हम इंग्लिश के अंदर जो है ना वो डायरेक्ट कम्युनिकेटिव मेथड जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज के अंदर, इन विच स्टूडेंट्स स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अब मौका दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो अंग्रेज़ी में सोचें, विच मेक्स देम एबल टू स्टॉप ट्रांसलेटिंग एंड दे स्टार्ट स्पीकिंग नेचुरली, ऑटोमेटिकली एंड फ्लुएंटली। तो अगर आप स्टूडेंट्स को मौका दें टू थिंक इन इंग्लिश, ओके। और मैंने आपको बताया था कि जो लिसन एंड रिपीट की जगह पर लिसन एंड आंसर्स टेक्निक जो मैंने आपको एक क्लास में सिखाई थी, इफ़ यू वुड रिपीट दैट थिंग, योर स्टूडेंट्स एंड यू पीपल वुड स्टार्ट टू थिंक इन इंग्लिश, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश देन यू स्टॉप ट्रांसलेटिंग। असल में जो आप सिंधी या उर्दू में सोच कर फिर तर्जमा करके जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, दैट्स नॉट अ लैंग्वेज, ओके। स्टॉप दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिस, दिस इज यूजलेस। डोंट बी अ पैरट, be a proper learner and stop using translation method. Start thinking in an English, okay. The moment you think in an English, that changes your language properly. उसके बाद फिर आप naturally, कुदरती तौर पे automatically खुद ब खुद और fluently
रवानी के साथ जो है ना, वो जो फ्लुएंटली मीन्स रवानी, ऑटोमेटिकली मीन्स खुद ब खुद, उसके साथ जो है ना आप जो बोलना शुरू कर देते हैं, दैट ब्रिंग्स रियली पॉजिटिव चेंज इन योर लैंग्वेज. ओके, so what we think, how can we get rid of this grammatical method? Simply this translation method, what we have been using, it has its own limitation, but we need to acquaint our students with the analytical method, with the communicative, direct communicative method, interactive methods, where students can interact, they can listen, they can think in an English, then they could respond and repeat naturally without simple imitations and copy. So this is how we can make language more scientific and more relevant and more befitting. I think this will be beautiful. And now the next class, I think it will be on the 29th of the, because today 27th, 28th, 29th, and let us see, would it be convenient for us to continue? Otherwise, if it doesn't remain continue, doesn't remain convenient for continue, then I must say you happy Eid in advance, and we would resume our class after Eid, and this process would go on. And in the next class, we will have extensive understanding of the remaining part of tenses. Generally, you cover 12 tense structures. We don't call it even a tense, but these are the structures, and these structures, they are used for a particular purpose. So we must understand the concept where simple is used, where continuous, where perfect, and still there are some structures, they have special structures and a special concept where we use them. So we would also discuss those advanced structures as well in the next class. Then we will move towards adverb. Okay, and we will also talk about voice as well. So thank you very much for this wonderful company today. I hope that you are enjoying and you are taking care of yourself. And still this COVID situation is going on. So kindly, wherever you are, this is good that good we are not fallen victim of to the extent the advanced countries or European countries are, but it doesn't mean that we are just free or we are in a safe zone. So wherever you are, you take all your preventive measures, you all take your cares, and keep enjoying your life and taking care of your neighbors and friends and fellows, and with the love and care. See you in the next class. Till that, bye bye. Thank you very much. Bye, please.